बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय श्री राम। प्रदीप जी, सो साक्षी मलिक इज रिटायर्ड फ्रॉम रेसलिंग। Yes. जैसे कि अब मैं रेसलिंग नहीं करूंगी क्योंकि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो भी ब्रिजभूषण साहब के बड़े खास हैं। तो मैं कहा कि भाई मैं तो रिटायर हो रही हूँ। दूसरी चीज़ ये भी है कि आज विजय चौक के ऊपर ऑपोजिशन की रैली थी, मतलब जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे सब लोग गए वहाँ पे टू लॉन्च देयर प्रोटेस्ट। बट सरप्राइजिंगली इनफ इट डिडंट क्रिएट टू मच ऑफ अ बज़ in terms of either social media or otherwise. I'm not even talking about the corporate channels because they all keep talking about the fact that the corporate channels are kind of compromised, but even otherwise. And I hope the India alliance is able to unite, because otherwise the road is very clear for Mr. Modi to come back in 2024. There's no way that they can even hope to compete. There's a possibility they might even win less seats than they did last time. Pradeep ji. Sir, I think the CWC met and they have a 5-member committee to coordinate with all the parties, and they believe that they are working towards some solution with common minimum program and everything will be included. But then, as you said, it should have been done as on yesterday, because the day by day जितने आप जा रहे हो, you're getting late. चौथा मीटिंग था और उद्धव ठाकरे जी जब बोल रहे थे कि कन्वेनर तक अपॉइंट नहीं किया, कन्वेनर की जरूरत है, नहीं तो यही 4 लंच ऑन मीटिंग या चाय कॉफी वाले मीटिंग है, चाय बिस्किट वाले मीटिंग है, नथिंग मोर देन दैट. एंड व्हेन नीतीश कुमार वाज probably offended, he was not the convener, no anybody took his name for the prime minister candidate. तो ये आगे जाकर ये होने वाला है. बट we hope that the darkest days of democracy जो हम लोग बात करते रहते हैं कि minority led government like देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे कभी प्राइम मिनिस्टर अगर रिप्लेसमेंट भी होता है तो कांग्रेस का हो. नाउ फॉर दैट देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टीज. 28 पार्टी मिले और उनमें से 2 ही पार्टी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आप बनाइए प्रधानमंत्री. वी प्रपोज हिज नेम, दैट वाज ममता बनर्जी एंड केजरीवाल एंड अदर केजरीवाल. तो 28 में से अगर अभी तक कंसेंसस नहीं है, because unless there is a Congress driven opposition, it has to be a Congress driven, it can't be a small party led alliance. तो हो ही नहीं सकता. It has to be a Congress led opposition. And if the Congress among the 28 parties still now has not been able to find a consensus where the majority of the parties say that the prime minister should be appointed from the Congress, जब तक ये होगा नहीं है तब तक I don't think it's going to work out. You can't work it out like that. You can't have at the end minority government headed by Congress, led and pushed by Congress. Exactly what किशोर तिवारी जी said yesterday, जो किशोर तिवारी जी ने कल कहा यहीं पर कि भाई वो राहुल गांधी जी का नाम अनाउंस कर दीजिए ना कि हमारे प्रधानमंत्री के फेस वही हैं. I mean that's it. And the whole Congress will unite. Let's be very clear. There's nobody else in the Congress. और भले ही वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम आगे कर रहे हो, ये कह रहे हो कि भाई वो शेड्यूल कास्ट हैं और वो ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट वर्सेस ओबीसी, ये होगा, कुछ नहीं होगा उससे. राहुल गांधी will have to come forward. He'll have to put his neck out. He'll have to put his hat in the ring, and he will have to take all the risks inherent in saying that hey, I am here to compete, and I will try to create opposition unity to the best of my ability, along with of course Mallikarjun Kharge ji, Ashok Gehlot, Digvijay Singh and all the other people who are around him. That's it. अब ये अगर नहीं करेंगे, आप खुद ही आगे नहीं आएंगे, तो फिर कौन आपके साथ आएगा? सीधी सादी बात है प्रदीप जी. राहुल गांधी जी is a recognizable face. He is the face of the Congress. उनको सामने आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. सर वो 4-5 मुद्दे जो जनरल इलेक्शंस में लोग मोदी जी को वोट करते हैं, जो नेशनलिज्म, राष्ट्र सुरक्षा है, राष्ट्र सुरक्षा, नेशनलिज्म, अपीसमेंट ऑफ नन, दैट इज व्हाट ही कॉल, एंड डेवलपमेंट. ये 4 मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, स्पेशली द फर्स्ट 2, राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रवाद. इसमें इफ कांग्रेस इज स्टिल नॉट हैविंग अ स्टैंड, माइनॉरिटी अपीसमेंट, जीरो टॉलरेंस टू टेरर,
Now this is on which the whole country is waiting for an answer from the Congress कि where do you stand where? जो आपने बार बार याद दिलाते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ये किया था, ये वॉर में ये किया था, इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर वाज देयर। तो ये सब आपको दिखाना पड़ेगा देश को दैट यू मीन नेशनल सिक्योरिटी, यू राष्ट्रीय सुरक्षा इस परम कर्तव्य मान के कांग्रेस चल रहा है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग जो है राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद का एक स्पिरिट आज मोदी साहब ने पूरे देश में और हर बच्चे में इस देश का कण कण में उन्होंने उस चीज को सजा के रखा है कि नेशनलिज्म इज अबाउट एवरीथिंग, राष्ट्र सुरक्षा इज अबाउट एवरीथिंग। सो दिस इंडिया अलायंस विल हैव टू शो where it stands, where all these things and India alliance you can't have a weak government, a kid cloud where this nationalism is concerned. And most importantly, the India alliance, whosoever is the PM face of the India alliance, will have to show where Mr. Modi has failed. जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, कहां पर मोदी साहब का फेलियर हुआ है, आपको सामने रखना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं ना कि मोदी जी फेलियर है चाइना को लेकर के, बाकी एक दो और चीजों को लेकर के, तो आप सामने लेकर के आइए भाई इस जगह पर मोदी जी फेल हुए, क्यों नहीं लाते, घबराते क्यों हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप खुद बोलते हैं कि आपको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता और पार्लियामेंट के बाहर आप बोलते नहीं हैं, मतलब अजीबोगरीब मसला है। अब जैसे कल राहुल गांधी जी से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई वो जो मिमिक्री हो रही थी उसके बारे में आपको क्या कहना है, आप खुद उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, उसका ठीक जवाब देना चाहिए था। आप बोल रहे हैं कि आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, आप किसानों की आत्महत्या के बारे में नहीं पूछ रहे, इसके बारे में नहीं पूछ रहे, उसके बारे में नहीं पूछ रहे। मेरा ये कहना है दैट मिमिक्री इज अ टूल ऑफ स्टैंड अप कॉमिक्स, इट हैपेंस ऑल द टाइम। बाला साहब ठाकरे यूज्ड टू डू इट ऑल द टाइम। बाला साहब ठाकरे स्टेज के ऊपर जाकर के सोनिया गांधी जी की उन्होंने न जाने कितनी बार मिमिक्री करी है, शरद पवार की कितनी बार मिमिक्री करी है। आदरणीय सामान्य नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के पटल पर राहुल गांधी की मिमिक्री करी है और दौड़ छोड़िए। सो व्हाई डज ही नीड टू बी सो अब्रप्ट एंड ब्रस्क? बोलना चाहिए ना कि भाई जब मोदी जी कर रहे हैं, हम तो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं ना, मोदी जी अगर मिमिक्री कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम क्या है? Sir, whatever he does, he has to be totally, absolutely correct, and his grit and determination about what he did should be absolutely clear to the public. You can't be wavering. Now, if you are a future prime minister, you cannot be shown wavering that you're here and you're there. On everything, you need to have a stand conviction. आपने कहा कि ठीक है हम कॉमेडी के साथ थे, I clicked the photograph, I was recording it. You need to have a deliberate reason why you stood there and allowed these things to happen. And if you are part of it, you believe that any kind of gesture is just freedom of speech, expression, yes, what you believe. Yes. It is your constitutional right. आप बोलिए ना, छाती ताक के बाद बोल दिए कि I will do it, I will stand there and I support what he has done there. And don't be scared. Why should you be scared? That's it. But then you show your conviction, determination. हाँ मैं खूँ and I was there because of this reason. 143 MPs suspended is a bigger cause. For that, if somebody is mimicking you, it doesn't mean anything. The most important thing is the freedom, democracy. Yes, sir. The point is, as far as the corporate media channels are concerned, for them mimicry is a bigger cause than the suspension of 143 MPs. Let's be very clear. अब जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के, और दूसरी चीज क्या, जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। वो जाट कम्युनिटी जो है, जाट समुदाय खड़ा हो गया, वो कहते हैं कि साहब कुछ लोग हैं जाट समुदाय के, उनके गांव के, कि भाई ये जाटों की बेइज्जती है। अरे भाई 750 किसान जो मरे उसमें से 550 जाट थे। जब किसान आंदोलन चल रहा था जिसमें 750 लोग मरे हैं उसमें 550 जाट हैं। मैं ये जानना चाहता हूं तब जाट समुदाय जो था वो आहत नहीं हुआ था, तब जाटों की बेइज्जती नहीं हुई थी। पूछना चाह रहा हूं मैं। अब माय प्रॉब्लम इज आई एम नॉट अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, आई डोंट हैव अ डॉग इन दिस फाइट. I would rather that we have a strong prime minister who looks after the entire country, who's right there with all of us and who delivers. सीधी सादी बात है. Now Congress will have to fight for itself. Why should anybody fight for you? Pradeep ji, Rahul Gandhi has to stand there, look into the camera and tell them that I support the TMC MP. Even if he has done the mimicry, he should displaying what is happening in the nation. आज अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, अगर बोलते हैं कि राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया है, इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अंडर थ्रेट है, सर ये राइट विंग कौन समझता है? प्रदीप जी आप खुद सोच के बताइए, कोई राइट विंग ये भाषा कोई समझता है क्या? नहीं, सीधा बोलिए भाई। जो भी कहना, मेरा कहना है कि आप जो भी कहना है छाती ठोक के कहिए कि लोकतंत्र खतरे में, इसलिए
143 एमपीज को आपने सस्पेंड किया, ये इतिहास में कभी हुआ नहीं है। ये चीज पूरे देश और दुनिया को समझना पड़ेगा क्यों हो गया। Let's ask Mr. Bharat Singh. Unfortunately, Pradeep Peshkar ji, he had an accident. He was going home and he had an accident on the way. I hope he's all right and I hope his friend is all right. He's taking his friend to the hospital. At the moment with us, Bharat Singh ji is with us of the Congress. Let's ask him. Bharat Singh ji, namaskar. नमस्कार। ये पीछे क्या सर सायरन बज रहा है, पीछे क्या हो गया? सब खैरियत तो है पीछे? खैरियत है। नहीं, पुलिस तो नहीं आ रही आपके घर में? क्योंकि वो नया क्रिमिनल लॉ जो पास हुआ है, पता नहीं, मैंने सोचा कि शायद और आपका भी नंबर आ गया हो हमारे साथ। कोई डिस्कशन, कोई डिबेट होगा नहीं जब तक वो सेंसर्ड नहीं होगा। सर आप ये बताएं, जो राहुल गांधी जी रिकॉर्ड कर रहे थे कल्याण बनर्जी जी साहब को, अब मेरी समझ में उनको बोलना चाहिए था कि यार मिमिक्री इज अ जेन्युइन टैक्टिक। सारी दुनिया में होता है, हर डेमोक्रेसी में होता है, हर डेमोक्रेसी में नकल उतारी जाती है। नरेंद्र मोदी जी खुद करते हैं, तो बोलना चाहिए था ना हम सपोर्ट करते हैं। यार क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, सर बताएं। राजीव जी, इस देश में सबसे बड़ा अगर मिमिक्री का कोई बादशाह है तो वो नरेंद्र मोदी जी है जी। नरेंद्र मोदी जी कितनी बार संसद और कितनी बार संसद के बाहर भी मिमिक्री किए हैं जी, किया है। याद करिए कि जब वो संसद के अंदर ये कह रहे थे कि इनकी हंसी तो सुकूनखा जैसी लगती है जी, वो मिमिक्री कैसी लगी थी पूरे देश को भाई? भाजपाइयों को तो बहुत अच्छी लगी थी। जब वो सोनिया जी को जर्सी काऊ कहते हैं, राहुल जी को बछड़े का बच्चा कहते हैं जी, तो ये क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? अच्छा, एमपी और प्रधानमंत्री मतलब एक लेवल के हो गए क्या इस देश में अब? अच्छा, मान लीजिए वो जो सांसद महोदय जिस तरह से कर रहे थे, ये भाजपा को कैसे पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ जयदीप धनखड़ जी ही करते हैं? ये कैसे पता, आप लोग कैसे पता कर लेते हो भाई? नहीं, वो जगदीप धनखड़ साहब का उन्होंने नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि कौन सा आपके पास टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप ये, अगर कोई मान लीजिए मैं अभी जिस तरह से बात कर रहा हूं तो आप कह देंगे नहीं भाई ये तो जो है राजीव बजाज जी जैसा बात कर रहे हैं, तो मिमिक्री कर रहे हैं जी। तो ये कोई उनके पास एक यंत्र है और उस यंत्र से ये षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र करके इस तरह से आरोप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर भरत सिंह जी, मेरा एक सवाल है, मेरा एक छोटा सवाल है, और मैं जैसे प्रदीप जी को भी बोल रहा था, भैया मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है ये चीज सामने रखने की। 750 किसान जो मरे थे ना, किसान आंदोलन, जो 3 फार्म लॉज को रिपील करने के वक्त, उसमें से 550 जाट थे, 550 जाट फैमिली से थे उसमें। तो तब जाट समुदाय आहत नहीं हुआ जो अभी जगदीप धनखड़ साहब की नकल उतारने पे आहत हो गया? भरत सिंह जी बताएं। देखिए, भाजपा पार्टी है, वो जो कहती है वही सही है इस देश में। बाकी अगर कोई कुछ कहेगा तो वो गलत है। वो 550 जो जाट मारे गए थे वो जाट नहीं थे, ऐसा भाजपा अपने वक्तव्य से और धनखड़ जी को जोड़ के ये दिखाना चाहती है। न तब धनखड़ जी को याद आया था कि हमारे समाज का जो है इतने लोगों ने एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने हत्या की, और मेरे हिसाब से उन्होंने वो शहादत पाई। उन्होंने एक तरह से देश के लिए, अपने समाज के लिए, किसानों के लिए, आत्महत्या मैं नहीं कहूँगा, मतलब वो जो मरे मैं वो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने शहादत दी किसानों के लिए, देश के लिए, जाट समुदाय के लिए। मगर उस समय न देश के प्रधानमंत्री को, न कृषि मंत्री तोमर जी को और न गृह मंत्री अमित शाह जी को कहीं भी याद आया कि ये भी जाट समुदाय से हैं और इनके साथ हम क्या ज्यादती कर रहे हैं। और धनखड़ जी के बारे में, अरे वो तो माला जपते हैं, जब सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का एक चाटुकारिता होती है ना, वो किस लेवल तक चाटुकारिता होती है, वो अगर कोई उसकी सीमा अगर कोई लांघ सकता है, लांघा है, तो मुझे लगता है कि ये महोदय थे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो सामने आई है, वो ये है कि आज की तारीख में हम लोगों को ऐसा लगता है, यहीं पर प्रदीप जी और मुझको और बाकी सब लोगों को भी, जिन जिन से हम लोगों ने बात करी है, इनफैक्ट कल उद्धव ठाकरे सेना के भी कुछ लोग थे साथ में, उन्होंने भी यही कहा था
कि भाई प्रॉब्लम क्या है। इंडिया अलायंस के सामने आपको राहुल गांधी जी का नाम पेश करना चाहिए बतौर प्रधानमंत्री के रूप में। और कांग्रेस ही एक पार्टी है, लेट्स बी वेरी क्लियर, अभी भी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें आपको 10 के 12 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं बीजेपी से, और तो और छोड़िए 40% वोट आपको पड़े हैं उन 3 स्टेट्स में जहां पर आप लोग हारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी जी को आपको सामने लाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। भरत सिंह जी बताएं। देखिए, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता ये चाहता है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने देश जी, ये सच्चाई है, ये मैं भी चाहता हूं, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहता है। लेकिन एक गठबंधन जो धर्म होता है, कल किसी भी पार्टी के नेता को ये न लगे कि नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी तो मैं कह ही रहा था कि अपने राहुल जी को जो है सपोर्ट करेंगे या राहुल जी को प्रमोट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव जो है वो सभी पार्टियां मिलके लड़े, और मिलके लड़ने के साथ में जब चुनाव हो जाए उस समय चेहरा भी तय हो जाएगा। देखिए, चुनाव के पहले 2 बड़े नेता ममता बनर्जी और केजरीवाल जी ने ये कहा कि नहीं, राहुल जो है खड़गे जी जो है कांग्रेस पार्टी से खड़गे जी प्रधानमंत्री का चेहरा होने चाहिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है भाई, अगर मान लीजिए खड़गे जी प्रधानमंत्री का चेहरा है तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है और एक दलित समुदाय से आते हैं, तो हमें कोई इसमें बुरा नहीं है। अगर खड़गे जी बनते हैं तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है ना, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हर पार्टी को 28 पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि राजीव भाई मुझे चुनाव आते आते हमारा जो है वो 36 से 37 पार्टियों का एक अलायंस हो जाएगा, आगे भी और बढ़ने वाला है जी। मुझे लगता है मायावती जी और पंजाब के अकाली दल से भी शायद वो भी आ जाए भविष्य में, और उसके बाद यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में अम्बेडकर जी, प्रकाश अम्बेडकर जी, वो भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा, मुझे लगता है 35-40 के करीब करीब हमारा जो है गठबंधन का एक कुनबा बढ़ेगा, और जब वो कुनबा इतना होगा उस समय जब हम लड़ेंगे तो निश्चित ही हमारी जीत होगी, और जीत के बाद हम ये तय कर लेंगे, हर पार्टी तय कर लेंगे कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस पर डिबेट करने का इस समय और कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें सभी को साथ, एक बड़े भाई का जो दायित्व होता है, बड़े भाई का दायित्व ये होता है कि सभी को संभाल के सभी को साथ लेके चले, कोई नाराजगी परिवार में ना हो। मगर आप इतने, जैसे बजाज साहब ने शुरुआत की है भरत सिंह जी, कि आपको ये जो कल्याण बैनर्जी ने बहुत बढ़िया मिमिक्री किया था, वो दूर से देख के मालूम पड़ रहा है कि जगदीश धनखड़ जी है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, और उस चीज को पूरे देश को सराहना पड़ेगा कि इतना अच्छा मिमिक्री कर रहे हैं। और मोदी साहब आपने खुद मोदी साहब के एक स्टेटमेंट का आपने जिक्र बार बार करते रहते हैं, जिसमें मोदी साहब कहते हैं कि आलोचना करना जीवंत लोकतंत्र का आभूषण है, मोदी साहब का कहना है। तो अगर मोदी साहब ये कह रहे हैं तो आपको राहुल गांधी जी खड़े हुए फिल्म करे तो कर रहे थे, उसमें क्या हुआ? ये पूरे देश और विदेश में एक बहुत बड़ी बात है कि 143 एमपीज को आपने सस्पेंड किया, और जो खड़गे साहब बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये आपने एमपीज को सस्पेंड नहीं किया, आपने लोकतंत्र को सस्पेंड किया है। भरत सिंह जी, इसमें पीछे हटने वाली बात आई का, अपोलोजाइज होने की सवाल ही कहा। चाहे वो धनखड़ साहब बोल रहे कि ओबीसी का, वो ओबीसी है, धनखड़ साहब बोले ओबीसी पे अपमान हुआ, वो जट है, वो जट का अपमान हुआ, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है स्टेटस, उसको अपमान हो गया। तो इसमें हुआ तो क्या हुआ? कैसे लगता है ये कोई अपोलोजेटिक होने वाली बात ही नहीं है भरत सिंह जी। समय समय के हिसाब से मोदी जी का स्टेटमेंट, भाजपा का स्टेटमेंट बदलता रहता है। कभी जो है मोदी सरनेम को लेके पूरे गुजरात का अपमान होता है, कभी जाट का धनखड़ जी को लेके ये प्रोपोगंडा करते हैं कि धनखड़ जी का अपमान पूरे जाट का अपमान है। तो ये अपने समय के हिसाब से अपनी रणनीति बदलते हैं। दूसरी चीज, जिस तरह से देश की जनता पिछले 3 दिनों से देख रही है कि संसद में विपक्ष के 143 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, और जिस तरह से जीसीएमपी के लेटर हेड पे साइन के माध्यम से 4 लोग अंदर घुसे थे, उसे पुरस्कार के तौर पे
संसद के अंदर बिठाया गया है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देश की जनता भी ये समझने लगी है कि अब हम लोकतंत्र की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, प्रजातंत्र अब नहीं होगा, अब जो होगा वो हुकुमशाही, तानाशाही होगा, डिक्टेटरशिप होगा। तो ये देश की जनता को भी समझ तो रहे हैं और समझना भी पड़ेगा कि अगर यही परिस्थिति रही नाम्बियार जी, तो शायद मुझे लगता है कि 2029, 24 तो छोड़ दीजिए, 29 के बाद कोई चुनाव इस देश में नहीं होगा। और इसी तरह भाजपा अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। 143 सांसदों का मतलब आप समझिए कि विपक्ष विहीन संसद के अंदर भाजपा ने कर दिया है कि जो पार्टी के अध्यक्ष सिर्फ बचे हैं, जो पार्टी के एक पार्टियों के अध्यक्ष बचे हैं, मुझे लगता है 1-2 सांसद ही उनके साथ में ऐसे बचे होंगे शायद। अगर 1-2, हाँ, इसी तरह से अगर मतलब वो बताना चाहते हैं कि अब जो है विपक्ष की जरूरत नहीं है, जो कुछ है सर्वे सर्वा हम है, सर्वे सर्वा पूरे देश पे राज हम करेंगे, विपक्ष मतलब कुछ नहीं होता है। यही से शुरुआत होती है देश के लिए घातक स्थिति। जिस दिन इस तरह से हो जाएगा तो हम चाइना और रूस की तरह से हो जाएंगे। वहां पे डिक्टेटरशिप जो वहां का राष्ट्रपति चाहता है वो करता है। क्या देश की जनता को ये कबूल है? क्या देश की जनता को ये मान्य है कि यहाँ पे हुकुमशाही हो, लोकतंत्र न हो? और अगर ये हो गया तो मुझे लगता है नाम्बियार जी, हम बैठ के जिस तरह से चैनल पे आज बात कर रहे हैं, हम ये बात भी नहीं कर पाएंगे। आप चालू करेंगे एयर, ऑन एयर जैसे होंगे, आपके यहाँ पे पुलिस आके आपको अरेस्ट कर लेगी, मेरे यहाँ पे आके मुझे अरेस्ट कर लेगी। लेकिन भरत सिंह जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हुई है, बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है कि नंबर 1, 3 नए क्रिमिनल लॉज जो लाए गए हैं, जिसमें तकरीबन पूरी सीआरपीसी को चेंज कर दिया गया है, वो पास हो गए विदाउट द ऑपोजिशन। 143 एमपी जो हैं वो सस्पेंडेड हैं और इस स्थिति में विपक्ष की गैर हाजिरी में ये तीनों लॉ पास कर दिए गए हैं। और आज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो किस तरीके से उनका सिलेक्शन होगा वो भी पास कर दिया गया है। तो वो तो आ ही गया ना, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो तो आ ही गया। अभी बिना ऑपोजिशन के ये सब पास हो गया है। भरत सिंह जी, देखिए, भाजपा यही चाहती थी। भाजपा ये जानती थी कि अगर इतने सांसद अगर संसद के अंदर होंगे तो शायद हमें ये सारे बिल को पास करने में कठिनाई होगी, परेशानी होगी। और यही देख के भाजपा ने जानबूझ के सोची समझी रणनीति के तहत 143 सांसदों को सस्पेंड किया, जो एक इतिहास बन गया है आज। और मुझे लगता है इसको तोड़ना नामुमकिन होगा। अब जो भी हम सरकार में आएंगे तो हम तो इस तरह से नहीं कर सकते। हम जो है लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकते हैं। हम 143 सांसदों को सस्पेंड करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सांसद जो होता है एक प्रतिनिधित्व करता है, अपने क्षेत्र का करता है। 17 से 18, 20 लाख लोगों का जो है वो उसके ऊपर दायित्व होता है। वो संसद के अंदर जाता है तो इतने लोगों के बारे में वो संसद के अंदर बताता है कि क्या समस्याएं हैं और क्या करना है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ऐसे कृत्य पे उतारू हो गई है कि 143, 150 करीब सांसदों को सस्पेंड करा के और अपने जो है विजन को वो सृजन में बदलना चाहती है, वो दिख रहा है कि इनको सबको निगलेक्ट करो, इनको सबको हटाओ, जो बिल पास करवाना है उससे करवाओ। लेकिन भविष्य में ये समझे, ये भाजपा और देश के प्रधानमंत्री ये समझ ले, अमृत तो का जो है घड़ा जो है ना, वो अमृत का वो जो है पी के नहीं आए, अमृत पी के नहीं आए हैं। आज नहीं तो कल इनको जाना है और फिर से दूसरी सरकार को आना है। और जब दूसरी सरकार आएगी ना तो ये समझना चाहिए कि फिर वो क्या करेगी। भरत सिंह जी, आज सीडब्ल्यूसी का मीटिंग भी था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग था। खड़गे साहब ने सबको याद दिला दिया अंग्रेजों के जमाने से आपने कैसे संयम और बलिदान का जो एक मूवमेंट लेके आगे बढ़े हैं। अंग्रेजों से डरा नहीं तो अंग्रेजों से नहीं डरा, अंग्रेजों के सामने झुका नहीं, तो यहां पर झुकने का सवाल नहीं होता। खड़गे साहब ने कहा 28 तारीख को एक जो 138 ईयर्स हो जाएगा कांग्रेस का, तो उस 138 ईयर्स में और भी आप संकल्प लेंगे कि 2024 में किस प्रकार से आप सत्य में आएंगे। बट जैसे शुरुआत में हम लोग टॉपिक हो गए, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय इसलिए भी है, पूरे देश को भी चिंता का विषय है, कांग्रेस लेड ऑपोजिशन होना चाहिए, ये सही है,
मगर आपने कन्वेनर भी नहीं अपॉइंट किया, प्राइम मिनिस्टर की बात ही छोड़ दो, कन्वेनर तक अपॉइंट नहीं किया। अब इसके लिए आप कैसे 4-5 महीने में, यहां पर मोदी जी का प्लान तो तैयार है, मोदी जी का प्लान 22 जनवरी का भी तैयार है, जहां उनका कहना है, विश्व हिंदू परिषद का कहना, पूरे अखंड ब्रह्मांड साक्षी रहेंगे, उस पृथ्वी स्वर्ग सब मिलके राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठान को देखेंगे, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि, अलग अलग अलग, तो उनके हर चीज तैयार है। भरत सिंह जी, आपने कन्वेनर भी अपॉइंट नहीं किया, उद्धव ठाकरे जी भी ने उसमें चिंता जताई कि कन्वेनर तो अपॉइंट होना चाहिए था। आप क्या नहीं, आपका लगता है कि डिले हो रहा है, देर हो रहा है हर चीज में, बिकॉज पूरा देश भी देख रहा है, विकल्प तो चाहिए ना भरत सिंह जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कन्वेनर डिक्लेयर कर देना ही सब कुछ नहीं दिखाता। जिस तरह से खड़गे जी का नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो दिखा रहा है ना कि खड़गे जी चेहरा है जी। ऐसा तो नहीं है कि चेहरा नहीं है। ये तो ममता दीदी ने कहा है, केजरीवाल जी ने कहा है, एक बड़ा चेहरा सामने आया ना देश के सामने। और खलबली मच गई प्रदीप जी। यस, बिल्कुल। और बीजेपी में खलबली मच गई है कि ये क्या हो गया कि सामने शेड्यूल कास्ट, अरे बाप रे, ओबीसी वर्सेस शेड्यूल कास्ट। आप जो है इतना घेरते हैं, इतना चिल्लाते हैं, दलित दलित जो नारा जपते हैं जी, हमने तो देश का प्रधानमंत्री ही दलित दिया है जी। ये मैं नहीं दिया हूं, ये हमारे साथी गठबंधन के साथियों ने दिया नाम जी, दुरुस्त बात। किसी को एतराज नहीं है इस विषय पे, होना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। तो इतना चिंता क्या करना है, इतना चिंता क्या? कन्वेनर का कोई टेंशन नहीं है। कन्वेनर भी देखिए, कन्वेनर भी हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे सीट बंटवारे का लगभग रोड मैप तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी सीट का जो है फार्मूला भी सामने आ जाएगा, तो एकदम टेंशन। हाँ, अभी आपने जो कहा, अब हंसे भी कह के कि बहुत परेशानी हो रही है भाजपा को, तो हाँ परेशानी हो रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे सारे पत्ते अब खुल रहे हैं और खुल जाएंगे। 1-8 महीने में देखिएगा 3-4 मीटिंग और होनी है, बड़ी अच्छी मीटिंग होनी है। उसमें हमारी पार्टी के कोई अलायंस के साथी भी बढ़ेंगे और साथ में एक एक नाम भी आएगा। हाँ, कुछ लोग चलाते हैं कि ये नाराज हो गए, वो नाराज हो गए, वो चले गए हैं छोड़ के, ये चले गए हैं छोड़ के। ये सब अफवाह जो है वो भाजपा समर्थित कुछ चैनल है वो फैलाते हैं और भाजपा फैलाती है, तो इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। हम अपनी तरफ दृढ़ निश्चित संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं। कल अमित शाह जी ने फिर सबको याद दिला दिया कि मोदी जी ने जो जबान दिया है, प्रॉमिस दिए, वादे, वो पूरा हुआ। वो फिर 370 आर्टिकल 370-35 एब्रोगेशन के बाद अमित शाह जी ने बोले कि देखो हमने किया, मोदी साहब ने बोले थे हमने किया। जीरो टॉलरेंस टू टेरर की तरफ हमारे जीरो टॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिक्योरिटी एजेंसीज को हम खुलेआम फुल फ्री हैंड दे रहे, फ्री हैंड। फिर कहा कि राम मंदिर, देखो राम मंदिर का निर्माण 550 साल के बाद मोदी साहब ने प्रॉमिस किया था। मोदी साहब के कार्यकाल में ही वो पूरे राम मंदिर बनकर तैयार होता है। काशी विश्वनाथ के बाद काशी में उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में 13 करोड़ विजिटर्स यहां पर आए। काशी का पूरा हमने कायाकल्प चेंज कर दिया, 41% इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है और 25,000 करोड़ का बिजनेस। तो एक एक आंकड़ा जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, आर्टिकल 370 है, एक एक आंकड़ा लेके इनका प्रोपेगेंडा ऑलरेडी चल गए अमित शाह जी, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी के। तो आप इसको कैसे देखते हो? ये एक चैलेंज है, चुनौती है। आर्टिकल 370, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, ये सब एक मुद्दा बनने वाले हैं। भरत सिंह जी, देखिए, मुद्दा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुद्दा बनने वाले हैं और भाजपा इसको मुद्दा बनाएगी, मैं भी मानता हूं ये मुद्दा बनाएगी। लेकिन देश की जनता आप समझदार है, इसको आप समझ लीजिए नामबियार जी। पेट भी उनका भरना है, महंगाई, बेरोजगारी। हम तो देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब भ्रष्टाचार, ये सारे चीज पे हम लड़ेंगे। मंदिर, मस्जिद, अच्छा मंदिर की बात करते हैं, मंदिर की बात कर लीजिए। अरे भाई, मंदिर आपने बनाया जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तभी तो बना ना, जब वहां पे सारा चीज क्लियर हुआ तभी तो, आदेश आने के बाद ही बना ना। कैसे बना लेते आप? जब हमारी सरकार थी उस समय तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो है चल ही रहा था ना मामला, वहां से क्लियर हो गया, फिर बना। और याद रखना चाहिए ना इनको तो याद रखना चाहिए कि उस मंदिर का ताला खुलवाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री और गांधी परिवार से राजीव गांधी जी थे। तब तो भाजपा का कोई आदमी नहीं आया था ना। और आज देखिए उस राम मंदिर के लिए कहते हैं कि रथ यात्रा जिसने निकाला था, लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोग को बुलाया ही नहीं। आप तो बुजुर्ग हो गए, घर बैठो।
जो असली भाजपा की लड़ाई लड़ने वाला आदमी, जो 2 सीटों से जो है लड़ के यहां तक पहुंचाने वाला व्यक्ति, जो इनके गुरु हुआ करते थे, अरे अपने गुरु के नहीं हुए, माँ बाप के नहीं हुए तो देश के क्या हो गया आप? जी देश तो सवाल करेगा ना, पूछेगा ना। गुरु गोविंद दोहू कड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु सबसे बड़ा होता है, और आपने गुरु को जो है कहां बिठा दिया? उनका जो है पूजा अर्चना करके बोले आप घर पे बैठो, आपकी उम्र हो गई है, आप न प्रधानमंत्री बन सकते हो, न जो है राम मंदिर के उद्घाटन में आ सकते हो। ये कोई तरीका है क्या? क्या देश नहीं देख रहा है इसे? देश नहीं जानता कि उनका जो है नरेंद्र मोदी जी का गुरु कौन था, कौन है? तो ये कोई छुपा हुआ नहीं है। और वो एजेंडा जो देना चाहते हैं कि वो मंदिर करना चाहते हैं, हम उस पर नहीं जाने वाले हैं। हमें पता है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सारे जो है देश में जो बढ़ रहा है, जिस तरह से लोकशाही छोड़ के ठोकशाही शुरू हो रही है, उस सभी चीजों को लेके इंडिया अलायंस लड़ने वाली है। हम विशेष जाति धर्म से बात नहीं करते हैं, हम सभी जाति धर्मों को लेके चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस एक जात के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, और एक जात के लिए लड़ाई लड़ती तो शायद हमारा देश आजाद नहीं होता। दुरुस्त बात जी। आगे प्राइम, आप जो नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण हमने किया है, 33% रिजर्वेशन हमने दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने किया है, अब जो एम्पावरमेंट हमने किया है, रिपब्लिक डे में आप देखो कंटिजेंट पे कंटिजेंट महिला को जो चलते हैं वो हमने किया, बीजेपी ने किया। उज्ज्वला 300 रुपया गैस तक महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी ने किया। आपने बोले, मोदी साहब ने बोले कि देखो वुमन एमपी नागालैंड से वो प्रिसाइड किया राज्यसभा में, नारी सशक्तिकरण हमने किया है, तो कोई और इसका क्रेडिट ले ही नहीं सकते। 27 साल आपको लगे, हम 2 दिन में किए मोदी साहब, तो एक एक चीज लेके वो तैयार है भरत सिंह जी। लेकिन झूठ ही तो बोलना है नाम बिहार जी, झूठ ही तो बोलना है। अब मैं चैनल पे बैठ के ये कह दूं कि पूरे देश को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है और सबसे ज्यादा मजबूत किया है, और देश को अभी भी कोई मजबूत कर रहा है तो हम कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूं। किसी का योगदान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है हम तीनों जन का, चाहे वो राजीव जी हो, चाहे भरत सिंह हो गए, चाहे नाम्बियार जो, हम तीनों को छोड़ के तो किसी ने किया ही नहीं है। देखिए, इस देश को बनाने में जहां पे सुई भी नहीं बनती थी, उस देश में मिसाइल से लेके हर चीज बनाने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों ने, साथ में सहयोगी भी थे, साथ में उसमें भाजपा का भी योगदान है जी। वो भी सड़क पे उतर के जो है चिल्लाती थी, फिर हम सोचते थे नहीं भाई कुछ हमसे गलती हो गई है तो हम जरूर करेंगे। हमने कहा नहीं, विपक्ष का भी होना जरूरी है, भाजपा का भी चिल्लाना भी जरूरी है। 2 पार्टी भले इनके 2 सांसद हो तो क्या हुआ, लेकिन विपक्ष तो होना जरूरी है ना। 2 आदमी को चिल्लाने दो, चिल्लाएंगे तो पता चलेगा ना हमको कि कहां गलती है और कहां सही है। लेकिन इस देश को रचने में, देश को बसाने में, देश को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति का, 140 करोड़ जनता का योगदान होता है। ये किसी नरेंद्र मोदी जी या किसी एक प्रधानमंत्री का अकेले का योगदान नहीं होता है। मोदी जी को तो ये भी नहीं पता है मुझे क्या बोलना है, टेलीप्रॉम्प्टर को देख के तो बात करते हैं वो कि मुझे बोलना क्या है अभी। लेकिन आज की तारीख में भरत सिंह जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, छोटी सी बात है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता है, नेता हैं, वो एक थोड़ी सी अजीब चीज बोल रहे हैं, आपके सामने रखना चाहता हूं कल, क्योंकि इसी प्रोग्राम में बोली गई, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी विष्णु का 11वां अवतार है, ऐसा बोल रहे हैं सर, ऑन रिकॉर्ड बोला है भरत सिंह जी। उस दिन के बाद देखिएगा, मतलब कल्कि से भी आगे, कल्कि 10वां अवतार, नरेंद्र मोदी जी 11वें। जी बताएं। अरे राजीव भाई, राम मंदिर का जो है उद्घाटन हो जाने दीजिए। राम मंदिर की, राम जी की मूर्ति को हटा के नरेंद्र मोदी जी का ये सारे भक्त, अंधभक्त रख देंगे, ये सारे प्रवक्ता रखेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं असली राम तो यही है, वो तो नकली राम थे। आप कैसी कैसी बातें, देखिए भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता चाटुकर्ता की एक सीमा होती है, उन सारी सीमाओं को लांघने का कोई काम करता, ऐसे नहीं करेंगे तो ओएनजीसी के डायरेक्टर कैसे बनेंगे भाई? नहीं बोलेंगे टीवी पे बैठ के तो वो जो है एमएलसी और सांसद राज्यसभा कैसे जाएंगे? बोलना पड़ता है ना, ये सब बताना पड़ता है कि साहब
देखिए, आज देखिए आप, फिर उसका बाइट निकाल के भेजेंगे व्हाट्सएप पे, उनके पीए को किसी को भेजेंगे, साहब को दिखा देना मैंने कितना साहब का जो है कहा कि अब कल की क्या उससे भी ज्यादा बड़े हो गए हैं, 11वें जो है स्थान पे, मतलब एकदम भगवान बना दिया है। तो ये सब जो है एक कहते हैं ना कि एक सारे चीजों के, अच्छा यही अगर कांग्रेस का कोई कह देता कि राहुल जी जो है इस तरह से भगवान का अवतार है, तो अभी तक तो तांडव मचा देते भाजपा के लोग। अरे ये देखो आप बोल रहे हैं कि अब ये तो भगवान के अवतार है, ये कांग्रेसी पगला गए हैं, कांग्रेसी इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं, सनातन धर्म भाई सारे चीज को ये लोग अपना लेते हैं, सनातन धर्म से लेके हिंदू धर्म से लेके सारे भगवानों 33 कोटि जो कहते 33 करोड़ भगवानों का अपमान ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और भाजपा तो एकदम नहीं सहेगी। कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी कहेगी कि नहीं हम तो कट्टर हिंदुत्व है। नकली हिंदू अगर कोई है राजीव भाई, तो वो और सिर्फ भाजपा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सर मेरी बात सुने प्लीज, जरा ध्यान से सुने मेरी बात आधे मिनट के लिए। भरत सिंह जी, कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कॉलर्स हैं आपके साथ, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब लोग हैं जिन्होंने ऋग्वेद पढ़ा हुआ है, अथर्ववेद पढ़ा हुआ है, सामवेद पढ़ा हुआ है, यजुर्वेद पढ़ा हुआ है, सारे पुराणों और उपनिषद के ज्ञानी हैं। अरे भाई, हमारे ऋग्वेद में इंद्र भगवान और उनकी पत्नी जो है दिति, उनका भी मजाक उड़ाया गया है। पुराणों में न जाने किस किस का मजाक उड़ाया गया है। शिव पुराण में शिव जी अपना खुद का मजाक उड़ाते हैं। आप मेरी बात सुनिए, ये क्या हो गया देश को। मैं आपसे जानना चाहता हूं भरत सिंह जी, हम हिंदुस्तान यानी भारत से अफगानिस्तान कब बन गए? भरत सिंह जी ये तो बताओ, ये क्या हो रहा है देश में? एक भाजपा के लोग एक कहावत कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी है तो जी। आप सभी के ऊपर कटाक्ष कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन आपको भाजपा में होना पड़ेगा। आपको भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का प्रवक्ता, भाजपा का नेता होना पड़ेगा। आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे फॉर्म जो है वही मिलते हैं। आपको सारे लाइसेंस जो है वो भाजपा देती है, चाहे आप भ्रष्टाचारी हो, चाहे आप भगवान का अपमान करें, चाहे आप किसी का भी अपमान करें, आपको सब कुछ माफ है। मगर आप अगर जरा भी विपक्ष में आ गए, किसी और पार्टी से आ गए, आपने जरा भी किसी भी भगवान का अपमान किया, तो उसे धर्म से जोड़ देंगे, उसे जाति से जोड़ देंगे, और पता नहीं क्या क्या संज्ञान देते हैं, और कहते हैं देखिए ये सारे विपक्ष के लोग भगवान का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, मोदी जी का अपमान करते हैं। तो ये मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है जब तक ये राज कर रहे हैं। इसी सब्जेक्ट में, आई नो प्रदीप जी यू वांट टू कमेंट, बट इसी सब्जेक्ट में एक चीज हर समय भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, नेता हैं, सब कोट करते हैं। भरत सिंह जी, शायद आपको मालूम हो या ना हो, जरूर मालूम होगा कि राम सेतु समुद्रम कैनाल के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल डिपार्टमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त एक एफिडेविट दिया था कि श्री राम थे या नहीं थे उसके बारे में कुछ हम लोग कह नहीं सकते, उस पर रिसर्च जारी है, वो काल्पनिक थे। वो एफिडेविट दिया गया था। यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने तो श्री राम की स्थिति पर ही, उनकी एग्जिस्टेंस पर ही, राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, इसका जवाब है मेरे पास, उस मान्यता इसका उत्तर है मेरे पास वैसे, लेकिन आप बताइए सर। नहीं, मुझे जहां तक समझ में आती है, हो सकता है आपका अलग विश्लेषण हो, मेरा अलग विश्लेषण हो सकता है। विश्लेषण है ही नहीं, कुछ और है। नहीं, मैं बता देता हूं सर आपको, इसके पहले कि आप जवाब दें। वो एफिडेविट अभी तक विड्रॉ नहीं किया गया है। बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। दैट एफिडेविट फाइल्ड बाय द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हैज नॉट बीन विड्रॉन। ये बता दूं आपको। अब आप बोलिए। नहीं, तो वो तो जब विड्रॉन नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर टिप्पणी करना, उस पर बोलना, मुझे लगता है कि वो भाजपा का प्रवक्ता हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी नेता हो, कहां तक उचित है। यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो है वो अवमानना कर रहे हैं। लेकिन भाजपा को यह समझना चाहिए कि मैंने कहा ना, प्रोपोगंडा अगर कोई तैयार करता है तो भाजपा झूठ बोलने का जो
एक बड़ा एक बोलते हैं ना कि करता है कोई तो भाजपा करती है। भरत सिंह जी, आपने मुद्दा अभी भी जो शुरुआत में 10 मिनट हो पार्लियामेंट जाएगा। में, लोकसभा में, राज्यसभा में ढंग के उठाए। आपने याद दिला दिया कि मोदी साहब आपने जो वादा किया था वो आप कब पूरा करेंगे। तो आपने बड़ा लिस्ट पढ़ के सुना है, राजीव शुक्ला जी पढ़े थे, ब्लैक मनी, काला धन कहां पर है, अब वापस लाने लेके आने वाले थे, पेट्रोल 50 रुपया, डीजल 40 रुपया आप करने वाले थे, सबको घर 2022 तक देने वाले थे, रुपये और डॉलर में पैरिटी लाने वाले थे। बोले रुपये और डॉलर में क्या क्या फर्क था मोदी साहब आने से पहले, आज वो भी कंट्रोल में नहीं है। आपका कहना 2 करोड़ जॉब्स, इन्फ्लेशन, एमएसएमईज बंद हो रहा है, तो ये लोगों के दिल में बैठ क्यों न रहा भरत सिंह जी? बिकॉज क्या ये एक मतलब बिकॉज आप हिंदुत्व से थोड़ा दूर हो गए, क्या ये वजह है कि भाजपा जो गोडसे, सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, हेडगेवार को आप लोग कोसते रहते हो, आलोचना करते रहते हो, क्या ये वजह हो सकता है? क्या हो सकता है वजह? मुद्दा तो आप ढंग के उठा रहे हो, काले धन नहीं आए, ये नहीं आए, घर नहीं मिले। देखिए, आपने 2-4 मुद्दे बताए, 25 ऐसे मुद्दे थे जिसपे 2014 के पहले भाजपा ने साइन करके दिया था। देश के प्रधानमंत्री ने 25 ऐसे मुद्दे थे कि जिसको ये कहा था कि ये मैं आने के बाद करूंगा। 25 मुद्दों में से आज तक एक भी मुद्दा वो जो है कर नहीं पाए, या फुल फेथ देश के सामने देश के लोगों के साथ में हो नहीं पाया। और उसी को हमारे नेता जो है शुक्ला जी ने संसद में उठाया, संसद में बताया, लेकिन भाजपा उस पर बात नहीं करती है। 2-4 स्लोगन मैं आपको एक आध वो याद दिला दूं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार जी, और उस पर तंज कसा था मोदी जी ने कि मनमोहन सिंह के ऊपर कि म अक्षर, मतलब महंगाई का म अक्षर मनमोहन सिंह जी के ऊपर तंज कसा था कि म भी नहीं जो है वो निकलता है मनमोहन सिंह जी से, म तक। मैं आज वो पूछना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री को महंगाई का म भूल गया है कि याद है? तो ये सारे मुद्दे हैं। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि देश के सामने देखिए मीडिया का, चौथा स्तंभ का जो है बहुत बड़ा रोल है। इसको मैं मानता हूं क्योंकि मैं मीडिया से ताल्लुक रखता हूं और प्रवक्ता हूं, तो मुझे समझ में आता है। दिन रात में जो है आप लोगों के बीच में रहता हूं। क्या होता है कि ये कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में कि जब कोई हंस होता है, 4 कौओं के बीच में जब बैठ जाता है ना, तो उसे जो है अपनी बोली भी जो है वो सुनाई नहीं देती है। वो सुनाई मतलब वो अपनी बोली भूल जाता है, तो उसकी जो आवाज होती है वो कौवे के जैसे निकलने लगती है। तो देश के चारों तरफ आज जो हो रहा है, जो आज दिखाया जा रहा है टीवी पे, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मोदी गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जिसको खरीद के जो है गोदी मीडिया बना दिया गया है, वो सुबह शाम एक ही चीज फैला रही है कि देखिए मोदी जी ने ये किया, ये इनका अपमान किया, ये इनका जो है बदनामी किया, इस समाज का बदनामी किया, हिंदुत्व का बदनामी किया, राम जी का जो है नाम बदनाम कर रहे हैं, भगवान का बदनाम कर रहे हैं। तो लोग रोज वही चीज देख देख के पहले तो यकीन नहीं करते हैं, यकीन करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके सर पे इस तरह से मढ़ा जा रहा है, इस तरह से दिखाया जा रहा है कि लोग न चाह के भी ये सोच रहे हैं कि हो यार, नहीं 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 सही है, तो रोज तो मतलब कुछ तो होगा तभी तो ये बात है। लेकिन जिस दिन चौथा स्तंभ हमारे देश का जागेगा नहीं और सही चीज दिखाना चाहेगा, नहीं जागेगा उस दिन मुझे अब देखिए लगेगा, लेकिन कम से कम कुछ तो आत्मा, अंतर आत्मा कुछ तो झकझोरेगी कभी न कभी। नहीं सर, नहीं, वो भूल जाइए। लेकिन यहां पर एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं, आज की तारीख में जीडीपी के हिसाब से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से भारत जो है दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है। अभी एट द मोमेंट आवर इकोनॉमी इज अबाउट $3.75 ट्रिलियन, $3.75 ट्रिलियन। वी विल सून बी $4 ट्रिलियन, और बहुत जल्दी हम लोग 6 या 7 महीने में जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे। वी विल बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन एक चीज है सर, भरत सिंह जी, आई एम सरप्राइज्ड, rightfully speaking, all the Congress spokespersons should have been screaming about this. If I was a Congress spokesperson, I would be saying this. वैसे मैं आपका काम कर रहा हूं भरत सिंह जी, आपका काम नहीं, एक्चुअली देश का काम कर रहा हूं सर। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसका हवाला हमेशा भारतीय जनता पार्टी देती है, हमेशा सरकार देती है कि किस प्रकार IMF ने कहा
The only shining light in the entire world economy today is India. 3 दिन पहले IMF की तरफ से एक चिट्ठी आई भारत सरकार को, चेक कर लीजिए, उसमें एक वार्निंग है, क्लियर कट कहा गया है कि आपका जो डेट है, एक्सटर्नल डेट, आपका जो कर्जा है, वो आपके जीडीपी से ज्यादा होने वाला है. इट विल बी मोर देन योर जीडीपी, 100% ज्यादा हो जाएगा. और जिस दिन वो हो गया, द इकोनॉमी विल गो इनटू अ डाउनवर्ड स्पाइरल. कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा सर. इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है. मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है जीडीपी बड़ा है, लेकिन आपने कर्जा कितना ले लिया है देश के ऊपर, वो तो देखिए भरत सिंह जी. कुछ दिन के बाद कहेंगे कि मनमोहन सरकार जी ने कर्जा करके जो छोड़ के गए थे वो मैं अभी चुकता कर रहा हूं. नहीं ऐसा है कि वो डेट्स क्लियर है सर, वो डेट्स क्लियर है, उस वक्त कितना था अभी कितना है वो साफ है, ये नहीं बोल सकते. तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये कुछ भी मोदी है तो मुमकिन है. देखिए ऐसा है कि जिस तरह से मैं कहा ना कि 5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी, तो फिर आखिर ये 106 का पेट्रोल क्यों ले रहे हैं जी. जब 5 ट्रिलियन के इकोनॉमिक हमारी बढ़ रही है, जीडीपी हमारी बढ़ रही है, तो हर चीज सस्ता होना चाहिए. देश की जनता को हर सुविधा मिलनी चाहिए. आज देश की जनता तरस रही है अपने थाली के अंदर देख के कि मेरे थाली में जो निवाले पहले मिला करते थे, कांग्रेस पार्टी के समय मिला करते थे, आज वो नदारत है, वो गायब है. तो आखिर ये 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमिक की बात करते हैं, यहाँ 3.5 के ऊपर ट्रिलियन इकोनॉमिक पहुंच चुकी है, मतलब ये पैसा तो अपने घर में ही है ना, कि मोदी जी कहीं और कहीं रख के तो नहीं आए ना. स्विस बैंक को जो बता रहे थे काला धन काला धन काला धन, कहीं वहां तो पैसा रुका नहीं है ना. अगर हम 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच रहे हैं तो यानी कि हमारी जो है आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है और हम बहुत मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. तो आखिर ये रोग हमारे यहाँ पे कैसे फैला हुआ है? 106 रुपए का, 200 रुपए का टमाटर, 1200 रुपए का गैस, 2 करोड़ नौकरी नहीं है एक भी, और हम कहते हैं कि हम तो 5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमिक बढ़ रही है. इकोनॉमी जा रही है हमारी, इकोनॉमी कहां गई भाई? दूसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि जीडीपी कहां बढ़ गई है, तो क्या करें बताइए ना. देश की जनता को उसका कुछ तो फायदा दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ सरकारें गिराने के लिए, एमपीस को खरीदने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए वो सारे फंड को आपने रखा है, पैसा रखा है क्या? यानी घुमा फिरा के जिसको खरीदेंगे वो भी आपके घर में और जो पैसा है वो भी आपके घर में, और आप टीवी पे आके प्रवक्ता हो चाहे नेता हो और ये कहे देश के सामने कि 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो रही है और हम जो है बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत हो रहे हैं. और आप कह भी रहे हैं राजीव भाई कि जो अभी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के हिसाब से हम तो बड़ा खराब स्थिति में आ रहे हैं. आगे चल के तो ये हो जाएगा कि हम तो कोलैप्स हो जाएंगे पूरी तरह से. सर ये कर्जा वापस लौटाना पड़ेगा ना. नहीं वो तो मैं तो वही तो बोल रहा हूँ. फिर ये जाते जाते कहेंगे कि ठीक है जयराम जी की आप अब कर्जा उतारो, मुझे जितना करना था और मैंने पहले भी कहा था. देखिए मोदी जी बहुत जो है वो ज्ञानी व्यक्ति है, उन्हें पता है कि कब क्या होने वाला है, और इसलिए मुझे लगता है 2014 के कुछ ही महीनों के बाद में एक मीटिंग में जनता की एक रैली में कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर व्यक्ति हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा. अब देश की जनता इसको किस तरह से लेती है, देश की जनता इसे किस तरह से समझती है, वो देश की जनता समझे. और जब वो जाएंगे तो कह देंगे मैंने तो पहले ही कहा था, आप लोग को समझ में नहीं आएगा. मगर अभी भरत सिंह जी कह रहे हैं कि 2024 में 2019 का हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे. अमित शाह जी छाती ठाक के बोल रहे कि 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और उतना सीट लेके आने वाले कि सब, और जो काम के बल पर और जो काम, तो दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंस में है भरत सिंह जी, टोटल कॉन्फिडेंस. देखिए मैं अभी भी कहता हूं, पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, चुनाव नहीं हुआ उसके पहले मैं कहता हूं, नहीं तो सब ये कहेंगे कि रिजल्ट आया ऐसा है वैसा है और आप कह रहे हैं. ईवीएम पे हमें शंका है और हमें ही शंका नहीं है, हर पार्टी को, विपक्ष की हर पार्टी को शंका है, हर नेता को शंका है, देश की जनता को भी शंका है. तो अगर इस देश में सारी जनता
सारा विपक्ष ये कहता है कि एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए, तो मुझे लगता है कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि एक बार जो बैलेट पेपर पे करा लें, सभी की शंकाओं को दूर कर दें। क्या ये नहीं हो सकता है क्या? अगर ये नहीं कराते हैं, ऐसा होगा, होना चाहिए। मगर आज कांग्रेस ने कहा कि आप ईवीएम को थोड़ा सुधारीकरण करना चाहेंगे। कांग्रेस के रिक्वेस्ट है कि जो वीवीपीएट है, रिसिप्ट जो रिसिप्ट निकलता है वो दिखे, जो वोटर है उसको दिखे और सेपरेट डब्बा में रखे, और पूरे उसका भी 100% काउंटिंग होना चाहिए और दोनों टैली होना चाहिए। यानी आप लोग की तरफ से सिफारिश गए, कितना एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, आई डाउट इट। दे डोंट नीड टू एक्सेप्ट। देखिए कुछ न सही से कुछ तो सही जी। कम से कम अगर आप बैलेट पे नहीं कराते तो कम से कम ये तो करा दीजिए। देखिए शंका है, और जिसने बनाया था, जिस देश ने बनाया था, उस देश ने बंद कर दिया, अमेरिका ने भी बंद कर दिया, तो यानी कि वो भी समझ गए कि इसमें भी हेर फेर हो सकता है, छेड़खानी हो सकती है। तो 400 सीट का अगर आप दावा करते हैं 403 सीट से ज्यादा आप लाएंगे, तो जिस हिसाब से हमारी अलायंस बनी है, जिस हिसाब से हमारी ताकत बढ़ी है, जिस हिसाब से आप लड़ते भिड़ते 2019 में 303 सीट बढ़े, उसके बाद तो जो इस देश की स्थिति हुई है वो तो कम होनी चाहिए। अगर इसके बाद में भी आप बढ़ते हो तो हम तो कहेंगे कि भैया ईवीएम को सुधारना तो पड़ेगा, ईवीएम को बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि देश में जो स्थिति चल रही है, मुझे नहीं लगता ये जो है आपको और बढ़ाएगी, आपकी सीटें कम होगी, क्योंकि जिस तरह से हमारा अलायंस जो गठबंधन 28 पार्टियों का अभी तक दिख रहा है, उसके हिसाब से हम तो अभी फिलहाल 250 के पार जा रहे हैं, 250 सीट आ रही है हमारी। भरत सिंह जी, मगर ये जो सजेशन है आप लोग का, कांग्रेस का बहुत अच्छा सजेशन है कि वो जो पर्चा निकलता है वो वोटर देखे और सेपरेट डब्बे में इकट्ठा कर ले, तो दोनों का 100% काउंटिंग होगा, तो टैली हो गए, तो सब दूध का दूध और जो आप बोलते हैं पानी का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, वो दूध का दूध और पानी का पानी, वो तो सही आपने कहा नामबिहार जी, लेकिन पूरा दूध में पानी ही पानी है, तो उसको क्या करेंगे आप? लेकिन अभी तो ये बात आ रही है कि राजीव गांधी जी 414 सीट लेकर के आए थे 1984 में, कांग्रेस की 414 सीटें थी 1984 में इंदिरा जी के जाने के बाद। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये 414 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे ना। 414 का रिकॉर्ड तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मतलब रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 414 का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, 414 से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे, ऐसा कहा है। अच्छा हुआ, ये किसने कहा मुझे नहीं पता, ये तो अच्छा हुआ नहीं बताए। 533 सीट पूरा लेके आ जाएंगे, और बड़ा भी इस समय हॉल भी बड़ा बना दिया है नरेंद्र मोदी जी। नया जो पार्लियामेंट अभी बना है उसमें कैपेसिटी थोड़ा सीटों की बढ़ा दिया गया है, 600 कर दिए, 542 से 600 हो गई, 600। हाँ, तो मुझे लगता है चुनाव आते आते 2024 का किसी प्रवक्ता के मुंह से शायद ये भी नहीं निकल जाए कि 600 सीट जो है हम लेके आने वाले हैं। वंडरफुल, राइट भरत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, ग्रेट प्लेजर as always having you on the show. Namaskar, all the best, thank you very much. Namaskar. So Pradeep ji, 414 seats, बिल्कुल सर। the BJP says it will go up to 420 or 426. सर, जो भरत सिंह जी भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी 12:22 के बाद मोदी साहब के जो टीचर होगा प्राण प्रतिष्ठान के बाद कि 550 साल के बाद, और जो विश्व हिंदू परिषद ने इतना हाइप किया कि अखंड ब्रह्मांड पृथ्वी स्वर्ग सब लोग इस इवेंट को देख रहे हैं, तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है। Right, let's ask चिंतामणि खारकर